لیکن علی اصغر نے مسکرا کر ایسا کمال کر دیا کہ اب بھی یزیدی ڈرتی ہے اصغر کے نام سے، اب بھی یزیدی ڈرتی ہے اصغر کے نام سے. یعنی یوم علی اصغر نہیں ہے، یزیدیت کے شکست کا اعلان ہے، سوار دوش رسول کی فتح کا اعلان ہے. اس لیے ہم سب خواتین جمع ہوئے ہیں اور اپنے ننھے بچوں کو یہ لباس پہنا کر یہ اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو جب دین خدا پر وقت پڑ جائے، دین خدا پر وقت پڑ جائے تو ہمارے ننھے سپاہی جنہیں ہم نے آمادہ کیا ہے اسے امام زمانہ کے سپاہی بنا کر اسلام کی نصرت کے لیے کھڑا کر دیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا اصغر، لبیک یا اصغر، لبیک یا اصغر، لبیک یا اصغر. بنگلورو میں شیعہ مسلمانوں نے یوم علی اصغر منایا. 28 محرم 16 اگست چہارشنبے کی شام انجمن زہرا کے تحت امامیہ منزل میں مجلس منعقد ہوئی. خواتین اور بچوں کی اس خصوصی مجلس میں 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر کی شہادت کا غم منایا گیا. اس موقع پر یہ بات کہی گئی کہ کربلا کی سرزمین پر یزیدی فوج کی ظلم و ستم، وحشت و دہشت کی انتہا کا یہ واقعہ تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی بخشا نہیں گیا اور انسانیت کا سب سے بڑا قتل انجام دیا گیا. حضرت امام حسین کا 6 ماہ کا لاڈلا علی اصغر بھی اسلام کی بقا اور انسانیت کے لیے شہید ہوا. اس پورے واقعے پر اس خصوصی مجلس میں تفصیلی گفتگو ہوئی. دوسری جانب ننھے منھے بچے اس مجلس میں شامل ہوئے اور یہ پیغام دیا کہ علی اصغر سا جذبہ وہ بھی رکھتے ہیں. جنوبی نیوز رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ حسین منی و انا من الحسین. مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بوجہ نواسے کی محبت کے نہیں، گویا میں اگر نہ آتا تو دین اسلام نہ آتا، اگر میرا حسین نہ ہوتا تو اسلام محفوظ نہیں ہوتا تھا. اس لیے مرسل اعظم نے کہا حسین منی و انا من الحسین. تو امام حسین علیہ السلام دین خدا کی نصرت کے لیے اپنے کہنے صرف خود مرد نہیں خواتین کو بھی لے کر ساتھ کربلا گئے، کیونکہ ہر ایک انقلاب میں بھی خواتین کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. حسین مظلوم نے اس لیے کہ یزید نے تمام دینی اصول کو مٹا رہا تھا، پامال کر رہا تھا، تو اسلام کی محافظت کے لیے گئے، جتنی قربانیاں ممکن ہو سکی وہ پیش کر سکے. آج جو ساری خواتین جمع ہوئے ہیں، ایک پروگرام رکھے ہیں جس کا موضوع دیا گیا ہے یوم علی اصغر، یعنی علی اصغر کا دن. کربلا میں حسین مظلوم کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا نام تھا علی اصغر. تو رسول اسلام نے مباہلہ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، سامنے تھے. گویا اللہ کے رسول یہ بتا رہے تھے کہ گویا عمر میں سب سے چھوٹا ہے لیکن حق کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی میتیں اٹھائے، 70 میتیں اٹھانے کے بعد سب سے آخر میں علی اصغر کو لے کر گئے. اس لیے کہ علی اصغر کو ماں کا دودھ بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا. اگر معلوم تھا حسین مظلوم کس لیے کہ امام تھے، پانی نہیں ملنے والا ہے. اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ آج کیا کہتے کہ کیا معلوم کہ خیمے میں بچہ پیاسا تھا. اس لیے حسین لے کر گئے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر. اس سے پہلے کہ اعلان کیا، چیلنج کیا کہ کر مباہلہ کے میدان میں نانا رسول اللہ نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا اعلان کیا. اور تو دیکھو ہمارے گھر کا بچہ بھی کتنا باشعور اور بلند کردار ہوتا ہے، کتنا حق کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ کہہ کر آواز دی حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے، حل من مغیثین یغیثنا، ہے کوئی فریاد رس جو میری فریاد کو پہنچے. اب ظالموں پر یہ اثر نہیں ہوا،
बच्चा यह सुनकर झूले से अपने आप को ज़मीन पर गिरा दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए और बच्चे को लेकर गए। ये जंग का उसूल है कि हर जंग में पहले छोटे छोटे हरबे इस्तेमाल करते हैं, जैसा जैसा मारिका तेज़ होता है बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे आखिर में अली असगर को लेकर गए, जो जिसके बड़े बड़े मुजाहिद भी मौजूदार नहीं हो सकते, इसलिए कि 6 महीने का बच्चा, ना उसे कोई ख़ानदानी झगड़ों का इल्म होता है, ना तलवार चला सकता है और ना कोई साजिश बर्पा कर सकता है। ऐसा खामोश किया वार अली असगर ने, बोलना हो गया दुश्वार, बोलना हो कर दिया दुश्वार अली असगर ने। तो क्या किया, अली असगर को लेकर गए इजहार हक की आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए। कल ये सवाल ना उठ सके कि क्या मालूम था खैमे में प्यासा बच्चा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानने के बावजूद कि एक छोटे बच्चे को जो इंसान पानी नहीं पिला सकता और तो वह इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत की बागडोर कैसे चला सकता है, एक मकसद। दूसरा मकसद ये था कि छोटे बच्चे भी अहले बैत अत्हार के घराने में यानी मोहम्मद के घराने में कितने बाशऊर होते हैं, कितनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास होता है, इंसानियत के कितने तरफदार होते हैं, यह साबित करना था। हुसैन ने अशकिया से कहा कि मैं तुम्हारे हक में गुनहगार हूँ, तो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह प्यास से करीब बहिलाकत है। जब कोई जवाब नहीं आया और तो कहा कि तुम्हारे ज़ाम नाकिस में मैं गुनहगार हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के बहाने पानी पी लूँ। बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया और कहा कि तुम अपनी हुज्जत तमाम कर दो। तो अली असगर ने खुश्क होठों पर अपनी नन्ही ज़बान फेर के बता दिया। इसके 2 मतलब है, अपने प्यास का भी इजहार किया और दूसरा ख़यामत तक के इंसानों को समझा दिया कि इमाम की इताअत कैसे की जाती है। तो अजीज़ों, उस बच्चे ने जो बड़े बड़े नौजवान मुजाहिद नहीं कर सके, न दुनिया भर की सारी जवानी कुर्बान हो जाए, उस बच्चे ने इतना काम कर दिया कि यजीद के बातिल होने की दलील बन गई। यौम अली असगर सबसे पहले ईरान में मनाया गया और जा बजा आहिस्ता आहिस्ता कई ममालिक में मनाया गया। उसके बाद दुनिया के कई ममालिक में कॉन्फ्रेंसें रखी गई। एक मुल्क में मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती कि कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका टॉपिक रखा आशूरा में तहरीफात, और वहाँ के सदर ने कहा कि इस जो यौम अली असगर मना रहे हैं इसको बंद करो ताकि अली असगर कहीं आलमी यानी ग्लोबल ना बन जाए। और फ्रांस में भी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका मौजू रखा कोई और मौजा नहीं, करबला के नन्हे शीरखार के नाम अली असगर शनासी एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उसमें एक मुखर्रिर ने कहा कि ये कैसी कौम है कि माँ बाप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अपने हाथों पर बुलंद करके कहती है कि या इमाम ज़माना, हमारे ये बच्चे आपको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आखिर में ये कहकर कि आशूर के दिन जो घुटनियों चल भी नहीं सकता था, आज इस्लाम उसके पैरों पर खड़ा हुआ है। तारीख ने किसी शायर ने कहा है, एक बार पढ़ के देख ले तारीख है करबला, 6 माह के सगीर ने क्या काम कर दिया। जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध भी इतना नहीं पिया। एक ऐसा इनकलाब आ गया कि तमाम यजीद ने जो मंसूबे बनाए थे कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों, कई दिनों से जो मंसूबे बनाए थे कि दीन खुदा को तब्दील कर दें, अली असगर की एक मौत ने, एक तबस्सुम ने इनके तमाम मनसूबे सालों में नहीं, महीनों में नहीं, एक लम्हों में खाक में मिलाकर रख दिया। दुनिया हुरमेला के, इसलिए कि बहुत बड़ा तीर अंदाज था, हुरमेला के तीर से डरती थी, हुरमेला के फन से डरती थी, लेकिन अली असगर ने मुस्कुराकर ऐसा कमाल कर दिया कि अब भी यजीदी डरती है असगर के नाम से, अब भी यजीदी डरती है असगर के नाम से। यानी यौम अली असगर नहीं है, यजीदियत के शिकस्त का ऐलान है, सवार दूशे रसूल की फतह का ऐलान है। इसलिए हम सब खवातीन जमा हुए हैं और अपने नन्हे बच्चों को ये लिबास पहनाकर ये इजहार कर रहे हैं कि देखो, जब दीन खुदा पर वक्त पड़ जाए, दीन खुदा पर वक्त पड़ जाए तो हमारे नन्हे सिपाही जिन्हें हमने आमादा किया है उसे इमाम ज़माना के सिपाही बनाकर इस्लाम की नुसरत के लिए खड़ा कर दें।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर। अली अस्गर अलैहिस्सलाम, हम आज यौम अली अस्गर अलैहिस्सलाम मना के एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एहतजाज क्या है। एहतजाज कभी भी किसी के जुल्म के ख़िलाफ़ किया जाता है और एहतजाज हम जब तक करेंगे जब तक कि इस जुल्म का बदला हमारे आखिरी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह आकर नहीं ले लेते हैं। यकीनन मकसद करबो बला क्या था, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि मकसद करबो बला क्या था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम इसलिए किया क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि यजीदियत ने ऐलान कर दिया है कि कुछ भी बनी हाशिम जो भी कह रहे हैं वो सच नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई जो है कहा नहीं गया है कि दीन क्या है, ये सब बनी हाशिम ने खुद बनाया है और इनकी बनी हुई इस हुकूमत को मैं तोड़ दूंगा। खुदा भी नहीं है, जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, कब्र के कोई अजाब नहीं है, ये यजीदियत का कहना था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेके वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन बैत करे तो मैं कहूँ कि देखा मैं सही हूँ, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की। अब जालिम ने क्या किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों को शहीद करके चाहा कि इतना जुल्म करूँगा, इतना जुल्म करूँगा, इतना जुल्म करूँगा कि लोगों के जहन में सवाल पैदा हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे थे तो खुदा कहाँ था, खुदा बंदे आलम ने क्यों उन्हें बचाया नहीं है। इसीलिए जालिम ने जुल्म किया, लेकिन जुल्म कभी भी जीतता नहीं है, हक जीतता है और बातिल हार जाता है। और आज इसी बात की दलील है, नन्हे नन्हे बच्चे लेकर हम यहाँ पर खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम की बारगाह में कि परवरदिगार हमारे छोटे छोटे बच्चे भी दीन के लिए हाजिर है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। रहमान रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम। सबसे पहले उस परवरदिगार आलम की तारीफ़ हम्द व सना है कि वो माबूद जो तमाम कायनात का खल्क़ करने वाला, वही परवरदिगार आलम ने जो आयत में वाज़े तौर पे कह रहा है अताअत अल्लाह, अताअत रसूल और अताअत उलिल अम्र अंजाम दो। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में जनाब अली असगर की शहादत कहा जाता है कि एक माँ का जज्बा बयान किया जा रहा है। रावी कहता है कि जिस वक्त जनाब मूसा को मादर मूसा ने एक गहवारे के हवाले दरियाए नील में डाला था, तो उस वक्त रिवायत कुरान में बयान करती है आयत कि जनाब मूसा की माँ का आलम ये हुआ था कि माँ का ऐसा लग रहा था जिगर फट जाएगा, लेकिन खुदावंद आलम ने मादर मूसा को संभाल लिया था। इसी तरीके से जब कुरान की आयतों की तफसीर की गई तो पता चलता है कि मादर मूसा को खुदावंद आलम ने संभाला ताकि उनके यकीन का मरहला बुलंद हो सके। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर को करबला के मैदान में वो निदा देने के बाद हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज़ जब बुलंद की और जब जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गहवारे से गिरा दिया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे के करीब आए और जनाब अली असगर को अपनी आगोश में लिया, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब रबाब से कहा था, ए रबाब, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। और खुदा की कसम सब्र करना, आप रिवायतों को उठा के देखिए, जनाब रबाब ने जब इमाम हुसैन जनाब अली असगर को करबला के मैदान में ले गए और 3 भाल का तीर शहजादे के गले पे लगा, तो शहजादी ने जब उस 3 भाल के तीर को देखा, ये नहीं कहा कि मेरे लाल को किस तरीके से शहीद किया गया, ये नहीं कहा 6 माह के बच्चे को मेरे मार डाला गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमाम की इत्तिबा करते हुए, इमाम की पैरवी करते हुए जनाब रबाब ने कहा, मौला क्या 6 माह का बच्चा भी नहर किया जाता है। अजीज़ों, ये बात हम औरतों के लिए ये साबित होती है कि एक खातून किस तरीके से अपने बच्चे को इमाम के लिए आमादा कर सकती है। अगर उसके अंदर यकीन हो, अगर वो इत्तिबाए इलाही की पैरवी करे, तो खुदा की कसम हम नौनिहाल को भी अपनी इमाम पे कुर्बान कर सकते हैं। और ये शहादत
शहादत इमाम जनाब अली असगर, और आज जो हम अली असगर डे बना रहे हैं इस बात की सबूत है कि वारिस ज़हरा, फ़र्जंद रसूल, आज हम भी अपनी औलादों को आपके लिए आमादा किए हुए हैं और हम दिलो जान से आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए जिस तरीके से जनाब रबाब ने बेदूने कलाम किए अपनी औलाद को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, आज हम भी अपनी औलादों को आपकी आवाज़ पे कुर्बान करने के लिए आमादा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना। आशूर के दिन करबला के मैदान में मौला हुसैन जब सारे अंसार और अक़रबा शहीद हो गए, उस वक्त बुलंद मुकाम पर पहुंचकर आवाज़ दी, कौन है जो हुसैन की मदद कर सके। मौला हुसैन जानते थे कि कोई मेरा अक़रबा नहीं है, कोई अंसार मौजूद नहीं है, फिर भी इस इस्तिग़ासे को बुलंद किया तो तारीख़ में मिलता है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बुलंद हुआ और लब्बैक या हुसैन की सदाएँ बुलंद हो गई। अगर हुसैन जंग के लिए करबला में आते तो सबकी मदद ले लेते। इमाम हुसैन ने हर एक की मदद का इनकार कर दिया। जैसे अली असगर ने खुद को झूले से गिराया तो इमाम हुसैन ने कहा, असगर हुसैन को तुम्हारी नुसरत की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हुसैन एक मकसद लेकर करबला में पहुंचे थे, इंसानियत की बका के लिए, अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए करबला में आए थे। वो दीन जिसको रसूल इस्लाम ने बड़ी मेहनतें करके लोगों में आम किया था, अल्लाह के पैगाम को अज़ियतें सहकर पहुंचाया था, उस दीन को यजीद और उसके लश्कर वाले दीन इस्लाम के उसूलों को बर्बाद कर रहे थे। सुन्नत मोहम्मदी को पामाल किया जा रहा था। उसी सुन्नत मोहम्मदी की बका के लिए और दीन इस्लाम के उसूलों के हिफाजत के लिए इमाम हुसैन करबला में पहुंचे थे। लिहाजा अली असगर को मौला हुसैन ने कहा, असगर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इससे पहले मौला हुसैन ने करबला में ये साबित किया कि देखो जो भी मेरे मुकाबले में आ रहा है वो इंसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने सबसे पहले हज़रत कासिम को पेश किया जो शबीह इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे। जब जालिमों ने इमाम हसन की शबीह हज़रत कासिम को कत्ल कर दिया तो इमाम हुसैन ने कहा, दुनिया वालों आगाह हो जाओ कि ये दुनिया, ये लश्कर यजीद इमाम हसन की चाहने वाली नहीं है। फिर इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को पेश किया जिनको सानी हैदर कहा जाता है। यजीदियों ने हज़रत अब्बास को भी कत्ल कर दिया। हुसैन ने कहा, दुनिया वालों आगाह हो जाओ कि ये अली के चाहने वाले नहीं हैं। फिर इमाम हुसैन ने अली अकबर को पेश किया जो हू बहू रसूल की शबी थे, सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूल इस्लाम की शबी थे। जो भी मुसलमान होता है वो नाम मोहम्मद से प्यार करता है, नाम मोहम्मद से उल्फत रखता है। कोई भी मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मोहम्मद के नाम से कोई चीज को मिसमार कर दिया जाए, लेकिन यजीदी लश्कर ने शबीह पैगंबर को कत्ल कर दिया। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, दुनिया वालों आगाह हो जाओ, जो रसूल इस्लाम की शबीह को कत्ल कर डाले वो मुसलमान हो नहीं सकता। इसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को पेश किया जिनका सिन सिर्फ और सिर्फ 6 माह का था। जहाँ पर बच्चे की बात होती है, बच्चे का मसला होता है तो वहाँ पर मजहब नहीं बोलता, मजहब की हदें खत्म हो जाती हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बोलती है। करबला के मैदान में जब मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को पेश किया, दुश्मनों ने अली असगर को भी खाक और खून में गलता कर दिया। हुसैन ने कहा, दुनिया वालों आगाह हो जाओ कि ये यजीदी लश्कर इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल जरूर है लेकिन इंसान नहीं है। अगर ये इंसान होते तो नन्हे से 6 माह के बच्चे को कभी कत्ल न करते। मौला हुसैन ने अली असगर की शहादत करबला में पेश की, पेश करके साबित किया कि हुसैन इंसानियत की बका के लिए करबला में आए हैं। अगर हुसैन जंग के लिए आते तो अपने साथ 6 माह के बच्चे को लेकर नहीं आते। लिहाजा अली असगर की शहादत हुसैन की हक्कानियत का ऐलान का नाम है, हुसैन की सदाकत के ऐलान का नाम अली असगर की शहादत है। आज हम सब
अली असगर ही की याद में ये प्रोग्राम को मुनक़द किए हुए हैं कि अली असगर की याद में हम सब जमा हुए हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को माएँ अपने हाथों पे बुलंद करके अली असगर की याद में अपने बच्चों को ले आकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हुसैन की सीरत पर चलकर अगर इस्लाम पे आँच आए तो इमाम हुसैन की तरह हम भी अपने गोद के बालों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को पामाल होने नहीं देंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मकसद, दूसरा मकसद ये था कि छोटे बच्चे भी अपने बेटे खान के मोहम्मद के खजाने में कितने बाशऊर होते हैं, कितनी जिम्मेदारी मैं गुनहगार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के बहाने पानी पी लो, बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और कहा कि तुम अपनी हुज्जत तमाम कर, और दूसरा क़यामत तक इंसानों को ये समझा दिया कि इमाम की इताअत कैसे की जाती है। तो अजीजों, उस बच्चे ने जो बड़े बड़े नौजवान मुजाहिद नहीं कर सके, न दुनिया भर की सारी जवानी कुर्बान हो जाए, उस बच्चे ने इतना काम कर करके कहती है कि या इमाम ज़माना, हमारे ये बच्चे आपको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आखिर में ये कहकर आज के आशूर के दिन जो घुटनों चल भी नहीं सकता था, आज इस्लाम उसके पैरों पर खड़ा हुआ है। तारीख ने किसी शायर ने कहा है, एक बार पढ़ के देख ले तारीख करबला, 6 माह के समीर ने क्या काम कर दिया। जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध इतना नहीं दिया। एक ऐसा इनकलाब आ गया कि तमाम यजीद ने जो मंसूबे बनाए थे कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों, कई दिनों से जो मंसूबे बनाए थे कि दीन खुदा को जब तो बोला हुसैन की आवाज़ या असगर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकर जाना मौला हुसैन का ये बात साबित कर रहा है कि हुसैन करबला में न जंग के लिए गए थे, न फसाद बर्पा करने के लिए गए थे, न फितने के लिए, न खून रेजी के लिए। बस हुसैन का मकसद को पामाल किया जा रहा था, उस सुन्नत मोहम्मदी को फिर से दोबारा जिंदा किया जाए। इस मेले में आने वाले इमाम हसन को चाहते भी हैं, फिर हज़रत
حسین نے کہا دنیا والوں سمجھ جاؤ یہ علی کے ماننے والے نہیں ہیں. پھر رسول نے نبی ہے پیغمبر کو قتل کر دیا تو امام حسین نے فرمایا کو قتل کر ڈالے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ خود کو مسلمان بتا Yes,